So, welcome dear students to our 11th class lecture. So, dear students, after a long gap, I am putting this lecture due to some unavoidable circumstances. And now we will begin with the new topic, and that is some basic principles. Some basic principles of organic chemistry. Some basic principles of organic chemistry. So, as the word goes here, organic chemistry. So, organic compounds, they are the compounds which possess basically carbon in their molecule. So, they possess carbon in their molecule, and majority of this organic compound which possess carbon in them have hydrogen along with carbon. So organic compounds are those compounds which possess carbon atom in their molecule compulsorily, and the valency of each carbon satisfied by hydrogen atom. So we call them as organic compounds. Now these organic compounds are classified broadly into two types. That classification takes place into two types, and the first type is a open chain compound. We will classify this compound classification based on structure, based on their structure. And organic compounds classified broadly into two types: open chain structure and closed chain structure, closed or ring chain structure. Open chain, closed chain or ring chain structure. So on the basis of their structure, organic compounds are broadly classified into open chain or closed chain structure. Now this organic compound, they contain carbon and valencies of carbon satisfied by hydrogen atom. So all these valencies are here satisfied by hydrogen atom. So we can put hydrogen here. Correct twice? Hydrogen. So this chain will be continued further. So open chain structure, they have, what do we mean by open chain structure? Very interestingly, open chain structure and closed chain structure. Open chain structure are those which have two or more free ends or terminals. They are known as open chain structure. जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल पता है, we take ethane. Ethane is C2H6. It is having 2 carbon atom and 6 hydrogen atom. So it is having 2 free ends or 2 free terminal. This is the one terminal and this is the another terminal. So carbon number 1 and carbon number 2. It has 2 free ends. If we take further example, C4H10 butane, open chain structure बनाना है हमको, तो क्या करें हम? We can have a 4 carbon atom chain like this, or we can have 4 carbon atom chain like this. So what we see here, this is open chain structure which is having 2 free ends, and this is also an open chain structure
which is having more than two free ends. So this is having more than two free ends. By the way, how many ends do we see here? 1, 2 and 3. This is not a free end. Okay, free end यानी ये कार्बन 1, 2, 3 and 4 कार्बन. करेक्ट. सो ये देखिए फ्री एंड्स, एक ये टर्मिनल, ये एक, और ये टी शेप में आ गया, ये तीसरा हो गया, है ना. यहाँ क्या था ये टू फ्री एंड्स, ओनली टू फ्री एंड्स. कार्बन चेन कैन कंटिन्यू on the right hand side or on the left hand side. Here carbon chain can continue on the left, right or on the bottom side. It can go on the upper side also, so more than two free end. So what is an open chain compound? Those compounds which have two or more free ends or terminal. Terminal भी बोलते हैं ends को, है ना. तो two free ends or terminals and we call them as open chain compound. Correct? And the example here is ethane. It is having two free end. This carbon chain can continue on left hand side as well as right hand side. So two free end. Next example देखा हमने butane, two free ends and more than two free ends. So this is what we say open chain compound. So open chain compound, organic compound which have two or more than two free ends. अब ये open chain compound एग्जाम्पल हमने देख लिया अभी यहाँ पर, और भी एग्जाम्पल देखते हैं. ये ओपन चेन कंपाउंड्स हैव टू और मोर फ्री एंड्स. आपको एंड्स और टर्मिनल समझ गए ना, फ्री एंड्स और टर्मिनल, फ्री एंड्स और टर्मिनल्स. अब इसका एग्जाम्पल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन्स ले लीजिए. एल्कीन्स आप ले सकते हैं डबल बॉन्ड वाला, एल्काइंस ले सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला. कंडीशन क्या है? दे शुड हैव टू और मोर फ्री एंड्स. वी कॉल देम एज ओपन चेन कंपाउंड. अल्केन्स के एग्जांपल तो देखा अभी, इथेन, ब्यूटेन. अल्कीन्स के एग्जांपल भी हमें पता है, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम. अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम. सो दिस आर व्हाट द ओपन चेन कंपाउंड. Now next is closed or ring chain compound. We also call them as a cyclic chain compound. So what happens here? Likewise, जैसे हमने open chain को define किया, can we define closed chain? Closed chain compounds are those which does not possess free ends or terminals. No free ends. No free ends और टर्मिनल्स, है ना. चांस ही नहीं है ना, तभी तो क्लोज होगा. जैसे आप ये बेंजीन का स्ट्रक्चर देखिए, बेंजीन का फॉर्मूला हमको पता है C6H6. अब स्ट्रक्चर वाइज अगर इसको साइक्लिक फॉर्म में या क्लोज चेन फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, ये 6 कार्बन एटम और ये एक दूसरे से क्लोज हो गए. अब नो फ्री एंड्स और टर्मिनल, ये तो सब क्या है, हाइड्रोजन है. यहाँ पर ऊपर भी ऐसे ही हाइड्रोजन जाएगा इसका. एंड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, alternate double bond. So what we see here, it is a closed compact structure which is having no free ends or terminal, and we call them as closed chain or ring chain or cyclic compound. So broadly classifying organic compound on the basis of their structure is what? Open chain compound which is having two or more free terminals. Example, hydrocarbons, alkanes, alkenes, alkynes. And second type of organic compound is closed chain, ring chain or cyclic chain compound, in which they have no free ends or terminal. So they don't have any free ends or terminals and we call them as closed chain compound. Correct है? तो ये भी आ गया अपने पास. अब ये closed chain compound का further classification है. And they are further classified into two types. One is homocyclic and another is heterocyclic.
होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। अब थोड़ा सा इसके नाम से ही अपने को समझ में आना चाहिए। होमोसाइक्लिक मीन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स आर देयर इन द साइक्लिक फॉर्म. Heterocyclic means more than one type of atoms are there in cyclic form or in the ring structure. Hetero means different or homo means only one type. So here homocyclic have only carbon atoms. Only carbon atoms in cyclic form. Atoms in cyclic form or ring form. ओनली कार्बन एटम. हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा? along with कार्बन क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर? along with कार्बन some hetero atom. अब hetero atom बोल सकते हैं आप. some hetero atoms like oxygen can be an hetero atom, nitrogen can be a hetero atom, sulfur can be a hetero atom. Okay, so these can be the heteroatom where they are present along with carbon in cyclic form. So very easy. Closed chain or ring chain, they don't have any free ends or terminals. वो तो देख लिया हमने. Classified into two types: homocyclic, only carbon atoms in cyclic form, and heterocyclic में क्या होगा? Along with carbon some heteroatom like oxygen, nitrogen, sulfur in cyclic form. अब इसके एग्जाम्पल और फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं हम अभी. तो ये समझा होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक. अब होमोसाइक्लिक it is further divided into two types. Homocyclic, only carbon atoms are present in the cyclic form. Divided into two types. The first type is alicyclic. Another is aromatic. ये वर्ड तो आपने सुने हैं सब. अब ये alicyclic कंपाउंड क्या होता है? They are the homocyclic. Alicyclic are homocyclic compound which have only carbon atom in cyclic form. और इसके बेस्ट एग्जाम्पल ये आपको पता होगा साइक्लोप्रोपेन. स्ट्रक्चर बनाएंगे हम. साइक्लोब्यूटेन, इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, है ना. तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन. साइक्लोप्रोपेन कैसा बनेगा बेटा? प्रोपेन यानी 3 कार्बन. साइक्लिक फॉर्म में 3 कार्बन. चलो हो गया साइक्लिक फॉर्म. नो फ्री एंड. साइक्लोप्रोपेन. प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन साइक्लिक फॉर्म में. वैलेंसी ऑफ कार्बन सेटिस्फाई विथ हाइड्रोजन CH2 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 बन गया साइक्लोप्रोपेन. साइक्लोब्यूटेन कैसे बनेगा? ब्यूटेन 4 कार्बन इन साइक्लिक फॉर्म. 4 कार्बन इन साइक्लिक फॉर्म एंड सेटिस्फाई द वैलेंसी. ये साइक्लोब्यूटेन हो गया. So alicyclic are nothing but homocyclic compound which have only carbon atom in cyclic form and they have this kind of example cyclopropene, cyclobutane. इसका एक जनरल फॉर्मूला बनता है CnH2n. देखिए कुछ इस तरह से फॉर्मूला बनता है. बट ये CnH2n में कहीं डबल बॉन्ड नहीं आता है ना. दे हैव ऑल सैचुरेटेड कार्बन. सैचुरेटेड कार्बन मीन्स ऑल द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन satisfied by single covalent bond. So this alicyclic compound, which is nothing but a homocyclic compound, they have a formula CnH2n, but the carbon atoms are totally saturated. Saturated means there is only single covalent bond between carbon atom. We have seen this structure cyclobutane, 4 carbon atoms. We have seen cyclopropane, 3 carbon. Likewise, we can have cyclopentane, cyclohexane.
इंटरेस्टिंगली मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन का बताता हूँ, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन होता है और वो अभी से क्लियर करते चलते हैं हम, है ना। ये एलिसाइक्लिक, मुझे लिखना है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन मीन 6 कार्बन इन साइक्लिक फॉर्म। ये 6 कार्बन एटम यहाँ लिख लेते हैं, 6 कार्बन एटम इन साइक्लिक फॉर्म। आ गया क्या, ये 4 5 और ये बेटा आ गया 6 कार्बन एटम इन साइक्लिक फॉर्म। फॉर्मूला इज CnH2n, यानी कार्बन 6 हो गए तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 12, हाइड्रोजन 12। तो हाइड्रोजन 12 यानी 6 कार्बन पे 12 हाइड्रोजन, यानी हर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगाने का अपने को। कितना इजी हो गया, देखो ये साइक्लोहेक्सेन। और ईच कार्बन, what we see here, that each carbon is having tetravalency satisfied by single covalent bond, and we call them as alicyclic compound. So we justify here C6H12, no double bond, no triple bond, only single covalent bond, and all the carbon atoms are there in cyclic form. We call them as alicyclic compound. Okay, next we will move to aromatic compound. अब ये aromatic compound ये भी आपने पढ़ा है कि aromatic compound क्या होते हैं, those which provides aroma. Aroma means some kind of smell, odor, fragrance. We call that as aroma. वैसे aroma ये जो term है ना, it is for good kind of smell. We call it as odor, good odor in chemistry, ODOUR, odor. So good odor producing compound was basically to be called as aromatic. But ये classification aromatic compound का आपको पता है, aromatic compound का एग्जाम्पल बतला सकते हैं आप। aromatic compound क्या होगा, बेंजीन। आपके हिसाब से best example of aromatic compound is benzene. Benzene is having certain kind of odor. So ये aromatic compound। अब इसमें और इसमें फर्क क्या रहेगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में क्या देखा हमने कि सैचुरेटेड कार्बन, ओनली सिंगल बॉन्ड। नाउ इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड वी कैन हैव डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम और सम अदर। तो ये एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड एरोमेटिक and non-benzenoid aromatic, benzenoid and non-benzenoid aromatic compound. इसका मतलब क्या हो रहा है, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। यहाँ ऊपर लिखता हूँ मैं इसका एग्जाम्पल, आपको सिस्टमेटिक तरीके से बेटा इन सबको लिखना होगा बाद में, है ना। आपके टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं 11-12 स्टेट बोर्ड बोलिए या CBSE बोलिए, आपको ये क्लासिफिकेशन मिल जाएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल भी लिखा दूंगा। तो हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर व्हाट, दे आर होमोसाइक्लिक, दे आर homocyclic. We know the meaning of homocyclic term here. They are homocyclic, and these aromatic are classified into 2 types, benzenoid यानी जिसमें बेंजीन रिंग रहेगी वो बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, और दूसरा बन रहा है नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। Are you getting it now? Non-benzenoid aromatic compound. So benzenoid aromatic compound का बेस्ट एग्जाम्पल बेंजीन अपने आप में है ना, बेंजीन C6H6 विथ ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड बेंजीन। अब इसी बेंजीन के स्ट्रक्चर पे आप क्या कीजिए, कोई दूसरा ग्रुप अटैच कर दो। जैसे यहाँ पर आपने NH2 कर दिया अटैच, तो ये बन गया एनिलीन,
वी गेट द कंपाउंड एनिलीन हियर। इसी दो बेंजीन रिंग को आप एक दूसरे से अटैच कर दो तो आपको ये एक नया कंपाउंड मिल जाएगा एंड वी कॉल इट एज नेफ्थलीन। आपने नेफ्थलीन तो वर्ड सुना होगा। तो ये रिंग चेन कंपाउंड है, नो फ्री एंड, इट इज अ होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन एटम रिंग में है ना। और पहला एग्जांपल तो बेंजीन लिखने की जरूरत नहीं है, बेंजीन समझा। नेक्स्ट NH2 फिनॉल आ गया, ये बन गया आपका नेफ्थलीन, है ना। नेफ्थलीन के स्ट्रक्चर में ध्यान रखना कि एक इसमें 3 बॉन्ड और दूसरे इसमें 2 डबल बॉन्ड, टोटल 5 डबल बॉन्ड रहेंगे नेफ्थलीन में। तो ये काय के एग्जांपल हो गए बेटा हमारे बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड के, करेक्ट है। अभी नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड देखते हैं। नॉन बेंजीनॉइड यानी जिसमें बेंजीन रिंग स्ट्रक्चरल फॉर्म में नहीं है। यहां पर बेंजीनॉइड, फिर से रिपीट कर रहा, बेंजीनॉइड में क्या है, बेंजीन रिंग स्ट्रक्चरल फॉर्म में है। अब नॉन बेंजीनॉइड में एरोमेटिक तो है, एरोमा कुछ तो देता है, लेकिन उसमें बेंजीन रिंग नहीं होती है। और उसका एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर। ये एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा अलग हटके है, तो आप लोग भी थोड़ा सा हटके देखो क्योंकि हम हैं हटके। ये देखो जी, अब ये तो थोड़ा सा टेढ़ा बनता है मुझसे स्ट्रक्चर, क्योंकि थोड़ा साइड वाइज खड़े होकर ड्रॉ करो तो स्ट्रक्चर भी अपने बेंड बन जाता है। एग्जैक्टली कैमरे के सामने आ गए तो फिर बना सकते हैं इसको। तो ये क्या बन गया, एक हमारे पास में नॉन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर आ गया और इसको यहां पर आपने डबल बॉन्ड ओ लगा दिया विथ ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो ये कंपाउंड का नाम है ट्रोपोन। नॉन बेंजीनॉइड है ये, नो बेंजीन रिंग, वी कॉल इट एज ट्रोपोन। ऐसा ही एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं, और ये स्ट्रक्चर को देखिए आप। पहले तो ऑक्टागोन बना लो, उसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड दे दो इस जगह से, और अब इसमें ये हमारा नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक रिंग, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक रिंग ये बना है ट्रोपोन। और ये है, यहाँ पर आप एक वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकते हैं नाइट्रोजन के साथ में। एजोथीन, एजोसीन इसका नाम होता है। एजो मीन्स नाइट्रोजन, एजोसीन। लेकिन ये कैसा हो रहा है, ये हेट्रोसाइक्लिक में जा रहा है। ओके, तो एक काम करो, आप एक ही एग्जांपल याद रखो, है ना। यू रिमेंबर दिस ट्रोपोन विच इज नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, ओनली कार्बन एटम, ओनली कार्बन एटम्स आर इन द रिंग, है ना। दे आर होमोसाइक्लिक, only carbon atom in the ring and other atom is outside the ring, and it is a non-benzenoid aromatic compound, we call it as tropone। इसी को आप हाइड्रोक्सी ट्रोपोन, अगर और स्ट्रक्चर बनाने हैं इसके आपको, तो एक और एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं, हाइड्रोक्सी ट्रोपोन बना लेते हैं, है ना। ओनली कार्बन एटम्स आर इन द रिंग, सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव, ये देखिए, ओनली कार्बन एटम्स इन द रिंग, एंड हियर what we get a double bond O, and on this carbon we put OH group। तो वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेते पहले, है ना। तो ये आ गया इधर, ये आ गया इधर में।
अब इसमें से एक वैलेंसी फ्री करनी है अपने को, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बनाना है, तो आपने ये OH यहाँ लगा दिया, तो अब 2 3 4 यहाँ पर CH2, ये CH 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 एंड OH, तो ये वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई आपकी। हर एक कार्बन देख लो, हर एक कार्बन टेट्रावैलेंट 1 2 3 4, ये 4, ये कार्बन 2 3 4, this 2 carbon 1 2 3 4 4 valency, here 2 3 4, तो ये कार्बन यहाँ पर आ गया, इसकी टेट्रावैलेंसी होगी, ये दोनों की टेट्रावैलेंसी होगी, इसकी टेट्रावैलेंसी होगी, इसकी भी टेट्रावैलेंसी होगी। So we get here hydroxytropone compound which is having non-benzenoid ring in its structure। तो हमने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, और एरोमेटिक को दो पार्ट में डिवाइड किया, बेंजीनॉइड एरोमेटिक यानी बेंजीन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड जिसका एग्जांपल बेंजीन इटसेल्फ, देन एनिलीन, नेफ्थलीन, देन नॉन बेंजीनॉइड रिंग में ये देखा हमने ट्रोपोन, हाइड्रोक्सीट्रोपोन, एंड दे आर नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कम्स इज व्हाट, दैट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक। तो along with carbon some heteroatom like oxygen, nitrogen, sulfur present in the ring। तो इसको भी हम यहाँ पर अलग से लेते हैं, है ना। मैं फिर से एक बार ये पूरा ड्रॉ करूंगा बोर्ड में, अभी तो एग्जाम्पल के साथ लिखना है मुझे, तो एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल गोइंग साइमल्टेनियसली। सो बोर्ड constraint, so we will now looking for heterocyclic compound। So what do you mean by heterocyclic compounds? They are the cyclic compounds which have carbon and other heteroatom in the ring। बस एक सेंटेंस ये याद रखने का, carbon and other heteroatom present in the ring, we call it as heterocyclic compound। correct है, heterocyclic compound। It is also classified into two types, heterocyclic aromatic and heterocyclic non-aromatic। heterocyclic aromatic and heterocyclic non-aromatic। heterocyclic non-aromatic, heterocyclic aromatic and heterocyclic non-aromatic। heterocyclic aromatic compound में क्या मिलेगा अब अपने को, इसमें heterocyclic यानी कार्बन के साथ हेटेरोएटम रिंग में होना चाहिए एंड इट शुड बी एरोमेटिक इन नेचर। तो इसका एग्जाम्पल ये देखिए, एग्जाम्पल हमको मिल गया एक फ्यूरेन। अब इसमें डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया रिंग में, पेंटागोनल रिंग है, उसके रिंग के जो कार्बन है एक कार्बन की जगह पे हेटेरोएटम आ गया, वी कॉल इट एज फ्यूरेन। वैसे ही दूसरा एग्जांपल बनाते हैं, ये देखो अब कार्बन के जगह सल्फर ला दो रिंग में, सल्फर आ गया रिंग में, वी कॉल इट एज थायोफिन। अब रिंग में कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन लेके आ जाओ, ये आपने बेंजीन रिंग बनाया, यहां सब क्या है, कार्बन है और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड भी है। अब एक कार्बन की जगह पे आप यहां नाइट्रोजन लगा दो, करेक्ट। और जैसे ये नाइट्रोजन लगाया, ये क्या बन गया बेटा, अब ये हेटेरोसाइक्लिक, और इसका नाम है पाइरिडीन और पिरिडीन। pyridine, okay। तो ये this is what pyridine we take here as a heterocyclic compound, heterocyclic aromatic compound, okay। heterocyclic aromatic compound, and इसी में एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम,
एक और एग्जाम्पल लिख लो, और वो एग्जाम्पल आ गया आपका, ये पायरिडीन हो गया और ये बना पायरॉल, है ना। दिस विल बी व्हाट वी कॉल एज पायरॉल। फिर से नाइट्रोजन कार्बन के साथ रिंग में है, इसीलिए हेट्रोसाइक्लिक, एंड इट इज अ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। नाउ हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। तो इसका एग्जाम्पल अपने पास में नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो ये एक एग्जाम्पल बना। ये एग्जाम्पल व्हाट वी कॉल एज टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। फ्यूरेन यहां देखो, हमने ये फ्यूरेन में क्या किया, हमने ऑल्टरनेट, ये डबल बॉन्ड दिया था, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं, टेट्राहाइड्रो, ये जो 4 कार्बन है ना, इन सब पे ये CH2, वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, कार्बन बाइवेलेंट हो गया, ऑक्सीजन टेट्रावैलेंट हो गया, वी कॉल इट एज THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। अब ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, इसी को अब हम क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और इसमें एग्जाम्पल एक और बनाते हैं हम यहाँ पर, विल टेक एग्जाम्पल ऑफ, ये पाइरिडीन लिया, इसका पाइपेरिडीन बना लेते हैं ना। तो पाइपेरिडीन के लिए हम क्या करेंगे, एक हेक्सागोनल रिंग बनाएंगे, वी टेक हेक्सागोनल रिंग, हियर इज नाइट्रोजन, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, और इसमें H लगा दिए, है ना, ये वाला पाइरिडीन और ये पाइपेरिडीन, पाइपेरिडीन, पाइपेरिडीन आ गया आपके पास में। ये क्या बना आपका, हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इसी में एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, जो आगे हमको ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कभी काम आने वाला है, और इसे हम कहते हैं, we call this as pyrene, we call this as pyrene। तो बच्चा लोग, मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, on the basis of their structure classified into 2 types, open chain structure and closed chain structure, correct? Open chain structure where more than 2 free ends, 2 or more than 2 free ends are available। और next क्या था, closed chain structure। तो closed chain और cyclic structure, closed chain और cyclic structure में क्या देखा हमने कि आपको रिंग चेन में कार्बन आइटम्स दिखे और अदर देन कार्बन आइटम। तो अब मैं यहाँ पर पूरा क्लासिफिकेशन एक बार लिख देता हूँ, है ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना। नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन on the basis of their structure, on the basis of their structure, on the basis of structure we classify organic compound into 2 types. One is open chain compound and another is a closed chain compound. So open chain compound having 2 or more free terminal, और इसके एग्जाम्पल हमने देखे, अल्केन, अल्कीन, एल्काइंस, ओपन चेन। अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा, अल्कीन में डबल बॉन्ड रहेगा, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्लोज चेन कंपाउंड, क्लोज चेन और साइक्लिक और रिंग चेन कंपाउंड, और रिंग चेन कंपाउंड। Now this closed chain compound are
further divided into two types. One is homocyclic. Homocyclic, only carbon atom in the ring. Only carbon atoms. याद रखने के लिए, है ना? Only carbon atoms in the ring. Homocyclic. Another is heterocyclic. Heterocyclic में क्या रहेगा? कार्बन प्लस हेट्रोएटम. Carbon plus heteroatom present in the ring. We call it as heterocyclic. Homocyclic, further divided into two types: aliphatic and aromatic. Aliphatic compounds, saturated carbon atoms. Saturated carbon atoms in the ring. याद रखना है एलिफेटिक सैचुरेटेड कार्बन एटम्स इन द रिंग. और फॉर्मूला क्या है? CnH2n. और इसका एग्जाम्पल हमने देखा है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, लाइक दैट. तो साइक्लोब्यूटेन, करेक्ट. तो साइक्लोप्रोपेन, बस ये सिंपल ट्रायंगल बना दिया तो ये साइक्लोप्रोपेन हो गया. ये अंडरस्टूड है कि यहाँ कार्बन है और कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर 6 हाइड्रोजन होंगे. ब्यूटेन में एक स्क्वायर बना दिया, बॉक्स बना दिया आपने, तो ये साइक्लोब्यूटेन हो गया. साइक्लोहेक्सेन है, बस ये साइक्लोहेक्सेन हो गया. तो दिस इज एलिफेटिक. नाउ एरोमेटिक कंपाउंड, एज वी हैड सीन, these aromatic compounds are classified into two types, है ना? Benzenoid aromatic compound, benzenoid aromatic compound and non-benzenoid aromatic compound. Benzenoid aromatic compound, benzenoid aromatic compound which have benzene structure in their molecule. Benzene structure. और example benzene itself, C6H6 with alternate double bond benzene. अब यही benzene पे हमने क्या किया था? अलग अलग substitution ला दिए थे. एक ये NH2 लगा दिया तो इसका नाम हो गया एनिलीन. इसी को आपने 2 बार रिपीट कर दिया बेंजीन रिंग को, तो आपके पास में कंपाउंड क्या बन गया? नेफ्थलीन. नेफ्थलीन, ये हो गया बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड. नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड में हमने एग्जांपल देखा ट्रोपोन. ट्रोपोन यानी ये स्ट्रक्चर आ गया आपके पास में ट्रोपोन. ये ट्रोपोन का स्ट्रक्चर हो गया और इसमें ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड. तो नॉन बेंजीनॉइड इज एरोमेटिक. हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कार्बन प्लस हेट्रोएटम, और इसको भी 2 टाइप में कर लिया हमने. एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, और ये नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक. नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक. अब एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हमने एग्जांपल देखा था. ये क्या बन गया बेटा? ये फ्यूरेन. फ्यूरेन कब होगा? जब ये डबल बॉन्ड आ गया. अब ये ऑक्सीजन अलोंग विथ कार्बन तो रिंग में है, तो ये एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक हो गया. अब इसी की जगह हमने सल्फर लगा दिया तो ये थायोफेन हो गया. एक बेंजीन रिंग बना लिया, हेक्सागोनल रिंग, और उसमें नाइट्रोजन लगा दिया हमने कार्बन के साथ, तो ये बन गया पाइरिडीन. नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसका एक एग्जांपल THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन.
टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का स्ट्रक्चर बनाया हमने, क्या किया हमने, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, फ्यूरेन इज दिस, अब टेट्राहाइड्रो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं लगाने का उसमें, है ना, तो ये बन गया THFL, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। पाइरिडीन से रिलेटेड एक डेरिवेटिव बनाया था हमने, है ना, पाइपेरिडीन बोला था जिसे हमने, है ना, ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड देखो बेटा, और यहाँ पर H लगा दिया तो ये बन गया पाइपेरिडीन। तो ये हो गया आपके पूरे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर बाद में सॉल्व करेंगे, है ना। क्लोज चेन में क्या होता, नो फ्री एंड्स और टर्मिनल्स, और ओपन चेन में क्या होता है, 2 or more free ends or terminals। चलिए जी, okay, see you in the next lecture, thank you very much।